today we are going to start new chapter, new unit, unit 6, 0 hour. 0 hour means the time set for the beginning of an operation. तो किसी ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए whatever time is predefined is called 0 hour. So this story is written by Alexander Blair, was a popular American science fiction and fantasy author. Actually he used to write on science fictions. The Brain, The Plotters are some of his other stories. You may read if you want. Okay, let's start. Para 1. Father had already gone when Bobby woke up. This disappointed Bobby a little, but then he remembered. This was the big day. Naturally, father would go to the project early, and at 4 o'clock, Bobby shivered deliciously at the thought of it. जब बॉबी सोकर उठा तो फादर ऑलरेडी अपने काम के लिए निकल चुके थे. ये देखकर पापा जा चुके हैं उसको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ, बट देन ही रियलाइज कि इट्स ओके, आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है और पापा के लिए स्पेशली, तो पापा तो जल्दी जाएंगे ही नहीं. शिवर डेलिशियसली मतलब ट्रेम्बल विथ प्लीजेंट सेंस ऑफ एक्साइटमेंट. एज यू नो, ट्रेम्बलिंग तो एक थोड़ा सा जब हम डर जाते हैं तो भी हम ट्रेम्बल करते हैं. अदरवाइज़ अगर आप किसी चीज़ की खुशी के मारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, कुछ होने वाला है इन फ्यूचर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू आर रियली एक्साइटिंग इन द प्रेजेंट, दैट इज़ वाई यू आर हैप्पी. और उस हैप्पीनेस के अंदर तुमको ऐसा लगता है यार कैसा हो रहा है, अलग सी फीलिंग आ रही है, कैसा होगा, एक्साइटमेंट जो होती है उस फीलिंग के लिए डिस्क्राइब कर सकते हैं शिवर्ड डेलिशियसली. इज़ अ पॉजिटिव वर्ड. ओके. ही वॉज क्वाइट एट ब्रेकफास्ट. नाश्ते के टेबल पे ही वॉज रियली क्वाइट क्लियर दैट मदर वॉज ऑक्यूपाइड because he didn't want to talk. Occupied means होता है जगह घेरना, but here the sense is mother was occupied means a human being is occupied. Human being जब occupied होता है इसका मतलब वो खामोश होता है, चुप होता है. ओके. सो मदर भी चुप थी और अच्छा है मम्मी आज चुप ही हैं क्योंकि मैं उनके किसी सवाल का जवाब देने में आज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ. नॉट टुडे ही डिडंट. माइट स्पीक समथिंग सेक्रेट. माइट एवन लेट आउट द बिग सेक्रेट. दैट वुड बी टेरेबल. अच्छा वो मम्मा मुझसे कुछ बात नहीं कर रही, अदरवाइज़ मेरे मुंह से एक राज की बात निकल जाएगी, जो भी वो एक है कुछ ना कुछ राज वो हम आगे देखते हैं. तो इसीलिए बेटर यही होगा कि मम्मी भी चुप रहें और मैं भी चुप ही रहूं. और अगर मेरा जो राज है, जो सेक्रेट है, वो अगर आउट हो गया तो वो बहुत ही टेरेबल सिचुएशन हो जाएगी. ऑफ कोर्स ऑल थिंग्स वर सेक्रेट एट बफेलो फ्लैट्स. ऑब्वियसली बफेलो फ्लैट्स यानी ये जो यहाँ पर रहते हैं बफेलो फ्लैट्स, यहाँ पर हर एक चीज़ जो है राज की ही बात है. So secret that top scientists like his father, John Kendall, didn't even discuss them with their families. इतना ज़्यादा सेक्रेट्स की बात रहती है कि एक बड़ा साइंटिस्ट जैसे मेरे पापा, वो अपने फैमिली तक को नहीं बताते कि वो कौन से मिशन पर है, क्या मिशन चल रहा है. Therefore it was really something to sit there eating breakfast knowing that today father was going to fly to the moon, and mother didn't even know that the lunar project was in the work. She would naturally not even dream that he was going with father. The thrill was overpowering. The secret was too much to bear. Actually his father was going to moon and he knew this fact very well. That is why he is comparing his knowledge to his mother, that I know very well that my father is going to a project, a lunar project, but my mother is unaware of it. And that is making thrill and overpowering. Overpowering means affecting him strongly. As Bobby got up from his chair, जैसे बॉबी अपनी चेयर से उठते हैं after breakfast, after finishing his breakfast, mother looked up and said, "And what's your plan for today, young man?" And his mother asked to him, "What is your plan for today?" Means what are you are supposed to do today. Bobby had a quick thought, a sudden temptation. Why not give her a hint? Bobby जो है थोड़ा सा सोचता है, a sudden temptation. Why not give her a hint? Bobby smiled and said, वो सोचता है मम्मा को एक हिंट देता हूँ, और फिर वो बोलते हैं, I think I'll go to the moon today. वो कहता है शायद मैं आज चांद पे जाने वाला हूँ. मॉम स्माइल टू. मॉम भी हंसती हैं एंड वेंट बैक टू हर रीडिंग. एंड मॉम उसको मजाक में लेती हैं, वापस अपनी रीडिंग स्टार्ट कंटिन्यू करती हैं. Well, see to it your fuel mixture is correct. जाओ देखो तुम्हारा जो फ्यूल मिक्सचर है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. इस फ्यूल मिक्सचर जो था वो किसके लिए था? एक्चुअली इसके पास भी एक
क्राफ्ट था एक, तो वो करेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये उसके बारे में बात करती है। अ टॉय, आई चेक इट एंड मॉम आई माई नॉट बी होम फॉर लंच। मम्मा मैं चेक कर लूँगा बट हो सकता है मैं लंच तक घर पे ना हूँ। वेयर विल यू एट, तो तुम कहाँ पर खाओगे, क्या खाओगे? ओह आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वेल माइंड योर मैनर्स एंड से थैंक यू व्हेन यू लीव मिसिस कैंडल। तो मिसिस कैंडल बोलती हैं थोड़े तमीज़ में रहो और याद रखो कि जब घर से बाहर जाते हैं तो थैंक यू बोल कर जाते हैं। एज शी वॉज बॉबी डैश आउट इन टू द यार्ड, और वो अपने बेटे को फिर देखती है कि वो यार्ड में मीन्स जो बाहर आंगन था, जो एरिया था, फील्ड एरिया, गार्डन एरिया, वो वहीं पर ही गया है ना, वहीं पर ही खेल रहा है ना। आउट इन द बैकयार्ड बॉबी फ्यूज्ड around his space rocket, a little tightening a screw here, hammering in a nail here, just until he could slip away without mother noticing where he was headed. थोड़ी देर तक वो अपने रॉकेट के अंदर झूठ माट में मम्मा को दिखाने के लिए कभी उसमें ठोका ठाकी करता हैमर से, कभी कोई उसमें स्क्रू टाइट करता, कभी कुछ करता। जब तक उसको ये सब करना पड़ा जब तक उसको पता था मम्मा मेरे पे ध्यान रखे हुए, और जैसे उसकी मम्मा का ध्यान बटा वो वहाँ से रवाना हो गया। इट वॉज अ बैड रॉकेट एट दैट, ही थॉट, 6 feet long with 2 seats and a neat instrument panel but child stuff. ये एक अच्छा खासा है, 6 feet long है, 2 सीट भी हैं, बट आखिर है तो एक चाइल्ड स्टफ मीन्स बच्चों का खेलने का ही ना। ऑफ कोर्स आफ्टर ही हैड फाउंड द वे इन थ्रू द सीवर ही डिडंट पैड एनी मोर अटेंशन टू हिज ऑन शिप। और उसके बाद वो एक सीवर के रास्ते से अपना रास्ता बनाने लगा जाने के लिए। कहाँ जा रहा था ये अपने पापा के पास जा रहा था, जहाँ पर मेन रॉकेट जो है वो जहाँ से लॉन्च होने वाला है, वो छुप कर। ही वेंट कैजुअली आउट थ्रू द बैक गेट एंड टर्न लेफ्ट, किकिंग एट पेबल्स एज ही साउंटर्ड अलॉन्ग, ट्राइंग टू लुक एज दो he had no place to go, had to be careful, didn't want to bump into any of his friends today either. Actually he was just pretending that he is going somewhere he don't know and really casually and sauntered means walk करते हैं ना slowly ऐसे चल रहा था। एंड जो बीच में पेबल्स आ जाते हैं पैरों के पास, उनको पेबल्स को मारते हुए आगे तक लेके जाना, just in case to pretend himself to others and to also his friends कि वो कहीं पर भी नहीं जा रहा है कुछ विशेष कुछ खास करने, वो नॉर्मल सा डे है और ऐसे कुछ करेगा बस। The way in through the sewer was at a place behind laboratory B, और laboratory B के पास जो सीवर था ये वहाँ तक पहुँच गया। You can see in image, ये डाउन से नीचे की तरफ से देख रहा है। There was a kind of an alley there that nobody ever walked through, and then this round lid you could lift up and look under, and a ladder you could climb down। और फिर वो जो सीवर था वो वहाँ पर नीचे चला गया, एक लेटर थी जो नीचे लेके जा रही थी उस सीवर में, और वो नीचे की ओर चला गया क्योंकि उसको लेबोरेटरी बी तक पहुँचना था। बॉबी हैडंट डेयर टू गो डाउन एट फर्स्ट, शुरू में उसकी हिम्मत नहीं हुई जाने की, बट दैन आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट ओवर नाइट हिज क्यूरियोसिटी हैड प्रीवेल्ड एंड ही हैड गॉन बैक एंड डग डाउन इन टू द लोअर। डग्ड मीन्स जाना कहीं पर बट झुक कर, ओके जहाँ पर हाइट या फिर कुछ इशू हो, दरवाज़ा छोटा हो, उसमें डग करके हमें जाना पड़ता है, तो उसके लिए यूज़ करा जाता है डग डाउन। ही कॉल्ड इट अ सेवर बिकॉज ऑफ सेवियर्स बीइंग अंडरग्राउंड, बट दिस प्लेस वॉज क्लीन एंड हैड बंच ऑफ वायर्स स्टंग इन एवरी डायरेक्शन एंड फैंट लिटिल लाइट you could see by. Actually this was not a real sewer like a water saver stream, water drain like, but it was just like बहुत सारे यहाँ पे तार थे, वायर्स थे एंड लाइट भी थी। लाइट क्यों थी? ताकि देख सके। ऑब्वियसली ये जो पूरा रास्ता था ये लेबोरेटरी से रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पे तार ही तार थे और कुछ भी नहीं था। देन ही फाउंड अ बिग ड्रम where they were building the rocket. It was so sleek and beautiful and shiny that he just stared at it up through the grating in the floor. That was for air circulation or something. Drome means a place where rockets are kept and take off from where place, okay. And grating means a metal frame
जो मेटल फ्रेम और बार्स का बना हुआ था। एंड स्लीक मीन्स स्मूथ शाइनी, तो वो बहुत ही प्यारा सा रॉकेट था, वो उसको देखता ही रह गया। ही डिडंट नो it was a moon rocket at first, not until he had gone back several times to pick up at it. And then one day, two scientists came walking along close to where it stood hidden from view. One of them was father. Bobby almost called out to him, but he caught himself and just listened to them talking. He learned the rocket was going to the moon, and it was funny because even there they spoke in low voices and didn't give too much away. एक्चुअली वो बहुत दूर खड़े थे और उसको आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी। इवन दो बॉबी एज्यूम दैट दिस रॉकेट इज़ गोइंग टू द मून। ये बहुत ही फ़नी सी चीज़ थी, ये उसने खुद नोटिस करा था। ही हैड नोन नाउ फॉर 3 days that at 4 o'clock the roof would open and the dome would be turned into blast pit and the rocket would shoot out through space at the moon. और ख़ुद ही उसने ये भी पता लगा लिया कि ये रॉकेट जो है 4 बजे जो है लॉन्च होने वाला है। दैट वॉज ऑल ही डिड नो फॉर श्योर। नीदर ऑफ द मैन हैड सेड हु वॉज गोइंग ऑन द first trip of the moon, but Bobby knew father would go. He would have to. After all, father was the second biggest scientist at Buffalo Flats, second only to Professor Scalmer himself, who was very old and wouldn't make the trip. That led father. There probably wasn't anybody else smart enough to go to this mission. And who is going to the moon with this rocket? He assumed that his father must be going, because the another scientist is a old age person and he can't afford this long trip. That is why his father will go. The idea of going himself had been born the previous day when he found a larger grating in the floor near the rocket and realized that if he was very careful he could climb out of the sewer and duck into the rocket when nobody was looking. Once inside, he was quite sure he would find a place to hide until blast off. That वो चुपचाप से वहाँ जाएगा और कोई प्लेस देख के वहाँ छुप जाएगा ब्लास्ट ऑफ होने तक, मीन्स रॉकेट लॉन्च होने तक वो वहाँ पर छुपका रहेगा। At first thinking about it he had been scared, but after he realized, but जब उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो how proud his parents would be, he made up his mind. तो उसने अपना माइंड बना लिया कि नहीं मुझे तो जाना ही है। शुरू में उसको डर लगा, बट देन ही रियलाइज़ कि मेरे फादर पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड होगा। टेकिंग टू डीप ब्रीथ ही ओपन द grating and got out. He was only 4 steps to the open part of the rocket. There was a little ramp that they had used to roll things in. The Bobby's feet touched it lightly as he jumped into the ship. He found himself in some kind of storeroom. It would be a good place to hide. All right. It was full of aluminum barrels, all the same size. He found a space between 2 rows and sat down and got his breath back. और फिर उसने गहरी सांस ली। somehow वो उसके अंदर एंटर हुआ। वहाँ पे बैरल से एलुमिनियम के बहुत सारे रखे हुए, वहाँ उसने अपनी थोड़ी सी जगह बनाई और थोड़ी सी गहरी सांस ली। ही वॉज वेरी क्वाइट अराउंड हिम। वहाँ पे बहुत शांति थी और वो भी चुपचाप बैठ गए। स्कैरी क्वाइट, बहुत गहरी शांति, बहुत डराने वाली। बट ही सेट हिज लिप्स फॉर्मली, लेकिन उसने अपने होठों को बिल्कुल फैमिली सेट कर लिया, मैं चिपका लिया, एकदम बोलना नहीं था, तो खामोश हो गया वो। He was not going to the moon with his father. John Kendall was a little late that night. He greeted his wife and said, "Well, Myra, did you see the big skyrocket? How could I miss it, dear? Your supper is in the oven." सपर मीन्स लाइट, जो डिनर रहता है, खाना रहता है, हल्का खाना काफ़ी, इसमें पॉटेज हो या फिर कुछ भी लाइट हो बहुत, उसकी नहीं बोलते हैं। तो आपका खाना जो है ओवन में है और मैं कैसे भूल सकती हूँ इतना बड़ा दिन या ये बात। बिल्कुल मैंने वो आपका रॉकेट आसमान में देखा। हाउ कुड आई मिस इट। ओके। जॉन ले बैक इन हिज ईजी चेयर एंड क्लोज हिज आइज। और फिर जॉन कैंडल अपनी चेयर पे, ईजी चेयर जिसे बोलते हैं, आरामदायक जो कुर्सी होती है बड़ी सी, उस पर बैठ गए, अंदर अपनी आंखें बंद कर ली।
would hoped to stage a little ceremony at the launching, but Washington said no. Washington said simply light the fuse and fire the things. बट वाशिंगटन ने हमको मना कर दिया, बट वी हैव डिसाइडेड कि हम बहुत बड़ा इसके लिए सेरेमनी करेंगे, बट वाशिंगटन साइड नो. वाशिंगटन मीन्स यूएसए का जो सेंटर रहता है जहाँ से सारे डिसीजन कैरी आउट होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट ऐसे. तो वाशिंगटन डीसी कैपिटल. It is still a big secret. No between you and me at least. We find an explosion rocket at moon. It will hit in about an hour, and telescope will show a big purple spot when our explosive go off and throw dye all over the place. और हमारा जो ये प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये कितनी देर में पहुंच जाएगा वहाँ तक? हाफ एन आवर. तो ये वहाँ पर पहुँच जाएगा एक घंटे में. एंड देन जो पर्पल उसके अंदर डाई इन्होंने भेजा है, जब वो जाएगा तो पर्पल डाई के जाते ही वो कलर वहाँ पे एक्सप्लोर हो जाएगा, फुल फैल जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा. और जब टेलीस्कोप से देखने पे पता लगेगा कि ओके, तो इनका प्रोजेक्ट जो है वो वर्क करा, इनका रॉकेट सही जगह पहुँचा, सही जगह जाके लॉन्च हुआ और उसने अपना काम करा, वो उससे पता चल जाएगा. आई सी लॉट्स ऑफ फन, नो डाउट, बट देयर वॉज द पर्पज़ 4th of July ऑन द मून. लेकिन आपने 4 जुलाई को यानी 4th of July को ही क्यों चुना? ओ नो, इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ अ सक्सेस द नेक्स्ट रॉकेट विल कैरी बैन इंस्टीड ऑफ अ बॉम्ब. अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है तो अगली बार हम जो है इसमें इंसान के साथ जाएंगे इस रॉकेट में, ना कि एनिमल को भेजा, सॉरी बॉम्ब को भेजा जाएगा. एनिमल वो एक्चुअली क्या होता है, इन सारी चीज़ों में एनिमल का यूज़ करा जाता है ना एक्सपेरिमेंट में, लाइक वैक्सीन्स में भी एक्सपेरिमेंट में एनिमल्स को पहले दी जाती है. Okay, Myra went to the kitchen to see about supper. John called, "Where's Bobby?" In bed, I suppose. वो अपने बेटे के बारे में पूछते हैं. Then she told कि वो बेड पे अपने सो रहा है. John moved toward the bedroom. Maybe he was still awake. तो वो अपने बेटे के रूम में जाते हैं कि शायद वो जाग रहा हो. Bobby rolled over. His eyes open. Dad, I thought you went to. पापा मुझे तो लगा डैडी मुझे लगा आप जा चुके होंगे. जॉन कैंडल सैट डाउन ऑन द एज ऑफ द बेड एंड टॉसल हिज सन्स हेयर. अपने बच्चे के सर को सहलाते हैं और कहते हैं, नो सन, इट्स द ओल्ड टेराफिमा फॉर मी. ये तो बेटा मेरे लिए टेराफिमा मीन्स लैंड रादर देन सी और एयर. डिड यू सी द रॉकेट ब्लास्ट? क्या तुमने रॉकेट ब्लास्ट देखा? इट वॉज रियली समथिंग. इट वेंट टू द मून डिडंट इट? वो कुछ तो था, मतलब वो चांद पे जा रहा था, है ना? दैट्स राइट. जॉन स्माइल एंड थॉट, ट्राई टू कीप अ सीक्रेट फ्रॉम अ चिल्ड्रन, इट जस्ट कांट बी डन. हाउज योर मून रॉकेट कमिंग अलॉन्ग सन? तो वो कहते हैं कि बच्चों से कुछ छुपाना बड़ी ही मुश्किल की बात है. और वो उससे पूछते हैं उसके जो चाइल्डिश स्टफ़ होता है जिसे वो टॉय कहता है, टॉय रॉकेट, कि तुम्हारा रॉकेट कहाँ तक पहुँचा? प्रिटी गुड जी. Dad, as long as you didn't go, I am glad I didn't go either. अरे डैडी आप नहीं गए तो मुझे बहुत खुशी है, आप भी नहीं गए तो मैं भी नहीं गया. You were planning to make the trip too. तुम भी क्या कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे थे? I got to the rocket and was all sad, but I got to thinking about mom, how one of us should stay and take care of her in case anything happened. Smart thinking, son. Now you go get to sleep. I will have a little time tomorrow. We'll play some ball. तो कहता है पापा मैं भी जा रहा था, लेकिन फिर मुझे भी याद आ गया कि नहीं, मम्मा के पास कोई तो रुके, आप भी मून पे चले जाएंगे और मैं भी, तो मैं वापस आ गया. That will be fun. John Kendall smiled as he left the bedroom. Children were wonderful. Give them a few old boards and a string wheel, and they could build a ship to fly to the moon. What a wonderful dream world they live in. Too bad they had to grow out of it. तो वो कहते हैं कि कितने अद्भुत सी बात है ना, बच्चों को हमने एक छोटा सा रॉकेट दिया और वो उससे कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा है कि मैं चांद पे जाऊंगा, लेकिन फिर वो इतना समझदार वाला बिहेव कर रहा है कि देखो मैं तो नहीं गया पापा, क्योंकि मम्मा अकेले रह जाती. एक्चुअली हिज फादर इज़ थिंकिंग कि वो बच्चा जो है वो अपने टॉय रॉकेट की बात कर रहा है, बट इन रियलिटी वो बच्चा जो है वो रियल रॉकेट की ही बात कर रहा था और वो वहाँ तक गया लेकिन वापस आ गया. So this is story. This was 0 hour. Your homework is do workshop of this chapter. Complete workshop of unit 6. Have a good day. Take care.